Question 12 on kinematics. Particle P travels in a straight line. It passes through the point O of the line with velocity 5 meters per second at time t is equals to 0. So the initial velocity is 5 at time is equals to 0, where t is time in seconds. P's velocity after leaving O is given by this. So we have an equation for velocity as well. The velocity of P is increasing from 0 to t1 and when t is greater than t2, and the velocity of P is decreasing when t is between t1 and t2. Acha. So they're trying to explain the graph of this to you. Velocity and time. So they're saying that the velocity increases from 0 to t1. अब this is a cubic graph. Cubic graph कुछ ऐसा होता है. ठीक है. और हमें पता है that the initial velocity is 5, so time 0 पे velocity 5 है. So it's going to be some cubic graph, for example इस तरह का कुछ. ठीक है. और इन्होंने कहा है कि between 0 to t1 increase हो रही है velocity. So यहाँ होगा 0 to t1, ये t1 हो गया. फिर उन्होंने ये भी कहा है कि between t1 and t2 velocity is decreasing. So ये देखो अब t2 से लेकर यहाँ तक velocity decrease होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है t2 यहाँ होगा. और फिर velocity is again increasing when time becomes greater than t2. So यहाँ पे फिर increase हो रहा है. So they have explained the graph to you, that velocity time graph is such that the velocity is increasing between 0 to t1, then it decreases from t1 to t2, and then it increases again after t2. और हमें इक्वेशन को देख के पता चल रहा है क्यूबिक ग्राफ है, तो ये हमने अंदाजे से बना लिया कि ऐसा कोई ग्राफ है. Now they're saying find the value of t1 and t2 and the distance OP when t is equals to t2. अच्छा, t1 और t2 की value find करनी है, तो we can see from the graph that that's going to be the stationary value. ठीक है. यहाँ पे maximum है, यहाँ पे minimum है. So the gradient would be 0. M is equals to 0. And M is actually dv upon dt. ये कैसे dv अपॉन dt है? देखो स्लोप 0 होती है ना मैक्सिमम या मिनिमम पे. स्टेशनरी पॉइंट पे हम नहीं करते थे dx by dy is जी equals to 0. ये वही चीज है. अब आपका dy by dx, सॉरी. सो अब आपका dy है dv, क्योंकि y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे t है, तो वो 0 हो गया स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है. सो हमने इसकी इक्वेशन बनानी. तो हमें v तो पता है. v है 0.002 t क्यूब minus 0.12 t square plus 1.8 t plus 5. अब हम इसको डेरिवेट करके इक्वल्स टू 0 करेंगे. सो डेरिवेट करके आ गया 0.006 t स्क्वायर minus 0.24t plus 1.8 plus 0 is equals to 0. So 0.006 t square minus 0.24 t plus 1.8 is equals to 0. You can apply the quadratic formula. T is equals to minus b plus minus square root b whole square minus 4ac upon 2a, which gives us
t equals 30 and t equals 10. Which means that t1 is going to be 10 and t2 is going to be 30. Okay. फिर उन्होंने कहा find the distance OP when t is equals to t2. तो 30 पे distance निकालना है. So distance के लिए हमें velocity को integrate करना होता है. So let's do that. V is 0.002 t cube minus 0.12 t square plus 1.8 t and plus क्या था plus 5. Okay. We need the distance. So integrate this. में सी टी क्यूब नहीं है। हाँ t cube है. Okay. अच्छा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं. उन्होंने कहा डिस्टेंस फाइंड करें एट t2. हाँ तो t2 30 है तो हम लिख देंगे 0 to 30 ताकि हमें c ना निकालना पड़े अलग से. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. It's going to be 0.002 t power 4 upon 4 minus 0.12 t cube upon 3 plus 1.8 t square upon 2 plus 5t. लिमिट्स आ गई 30 और 0. अब इसमें 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर माइनस करके 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. So that gives us 285. When you substitute 30, you get 285 and minus sign, and when you substitute 0, you get 0. So the final answer is going to be 285 meters. So this is the distance covered at t is equals to 30. Part 2. Find the velocity of p when t is equals to t2 and sketch the velocity time graph for the motion. Okay. So we need the velocity at t is equals to t2. बल्कि t1 के लिए भी चाहिए होगी अगर ग्राफ बनाना है. बट एनीवे लेट्स फाइंड इट फॉर t2 फर्स्ट. सो v है 0.002 t cube minus 0.12 t square plus 1.8 t plus 5. अब at t equals किस पे कहा था t2 पे which was 30. अब v निकाल लो और ये आता है 5 आता है. तो अब ग्राफ में हमें पता है
ग्राफ बनाना है। स्टार्ट 5 से हो रहा है, टाइम 0 पे यहाँ आप लिखोगे टाइम इन सेकेंड्स, और यहाँ लिखना है वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। टाइम 0 पे वेलोसिटी 5 है, उसके बाद टाइम आता है T1, और उसके बाद टाइम आता है T2। टाइम T2 पे भी अभी हमने वेलोसिटी निकाली है 5 ही है, तो यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। तो क्यूबिक ग्राफ है, कुछ ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा। तो हमने अब फाइंड करना है वेलोसिटी एट T1, बल्कि यूं करके कुछ ऐसा करके होगा जैसे पहले डिस्कस किया था, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पे वेलोसिटी की क्या वैल्यू है वो चाहिए। सो वो भी कर लेते हैं साथ ही। ऑल्दो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन ग्राफ के लिए हमें जरूरत होगी। टाइम 10 था, जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी क्या है? इट्स 13। सो यहाँ पे टाइम भी लिखने हैं, इनफैक्ट दिस इज 10 एंड दिस इज 30। अब मेरी स्केलिंग बहुत खराब है और इसके मार्क्स कट जाएंगे। देखो मैंने इतने डिस्टेंस को 10 का है, और फिर इतने से डिस्टेंस को आगे 30 कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो लेट मी फिक्स द स्केल से, ये 10 होगा तो फिर ये 20 होगा और ये 30 होगा। ओके, सो T1 पे वेलोसिटी, T1 इज 10, 10, 20, 30 सेकेंड्स। ओके, सो 10 पे वेलोसिटी आई है 13, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ से ऊपर कहीं हो जाएगा 13। ये आ गया। और फिर 30 पे हमने निकाली थी 5 दोबारा, ये आ गया। तो ग्राफ यूं जाता है, फिर यूं जाता है, और इधर से यूं जाएगा। दिस वुड बी द ग्राफ। कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। चल नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Particle moves in a straight line. Its displacement t seconds after leaving the fixed point O is x meters, where x is equals to this. Find the speed of the particle at t is equals to 0 or t is equals to 10. तो अगर स्पीड निकालनी हो x से, तो v is equals to dx by dt। डेरिवेट करना होगा, तो दिस becomes 2 over 2t plus 3 over 30t square plus c। अच्छा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 10 फाइंड करना है। तो फिर हम इंटीग्रेशन के लिए, सॉरी, हम डेरिवेट कर रहे हैं, वी नॉट इंटीग्रेटिंग, सॉरी। सो देयर इज नो प्लस सी हियर। अब फाइंड दिस आपने बिकम्स, और मैंने वैसे शायद आपने टू वैसे आपने टू ओवर क्या लिखा हुआ है? 2/2, रुको मैं दोबारा करती हूँ, मुझे लगता है मैंने बीच में कहीं इंटीग्रेट कर लिया। 2 नीचे आएगा 2/2, और 2 की पावर 1 लेस हो जाएगी, प्लस 3 नीचे आएगा 3/30, और पावर 1 लेस हो जाएगी, ये हो गया, इंटीग्रेट हो गया। सॉरी, डेरिवेट हो गया, इंटीग्रेट नहीं। ओके, डेरिवेशन की है। और अब हमें स्पीड फाइंड करनी है एट टाइम इज इक्वल्स टू 10। तो अब टी की जगह 10 यूज कर लेते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस ये भी 1/10 हो गया, 10 प्लस 1/10 टी 10 स्क्वायर। तो ये आ गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये बन रहा है टी प्लस 110 टी स्क्वायर।
पार्ट वन हो गया where we have to find the speed of the particle at time is equals to 10. डिस्टेंस से स्पीड निकलती है डेरिवेट करके, तो हमने इसको डेरिवेट कर दिया. पार्ट टू, the value find the value of t for which the acceleration of the particle is twice its initial acceleration. अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात हुई है तो वो निकलती है वेलोसिटी को डेरिवेट करके. तो वेलोसिटी हमारे पास आई है t+1/10 t². इसको अब दोबारा से डेरिवेट करेंगे. 0+2/10 t, which is 1/5t. नहीं, जीरो नहीं होगा, वन होगा, सॉरी. टी की डेरिवेशन होगी 1, प्लस 2 नीचे आ गया 2/10, और पावर 1 लेस होगी. सो इट इज 1+1/5t. ओके. अब उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी for which the acceleration of the particle is twice its initial acceleration. अच्छा, acceleration का expression हमारे पास ये आ रहा है. अब initial acceleration क्या होगी जब टाइम जीरो होगा? Initial acceleration is uh, at time is equals to zero. तो वो हो गई a is equals to 1 meters per second square. So initial acceleration is just 1. उन्होंने कहा find the value of t when acceleration is twice of its initial acceleration. So दो वो हो जाएगी 2, twice of initial acceleration. So अब आपने करना है 2 equals 1+1/5t, और इससे अब t की वैल्यू ढूंढ लेंगे. सो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया, इज इक्वल्स टू 1/5t, और t आ गया 5 सेकेंड्स. ओके, ये भी हो गया. सो क्वेश्चन 14, ये समझ आई है या कुछ पूछना है तो प्लीज बताओ. समझ आ गई है। ओके. 14. Particle P moves in a straight line and passes through the region O. The velocity of sorry, the velocity of P at time t seconds is v meters per second, where v is equals to 20t minus t cube. At time is equals to 0, the particle is at rest at a point whose displacement from O is -32. अच्छा जी, तो अब at time is equals to 0, यूजली वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, क्योंकि जब टाइम जीरो होता है ना, तो वो उसको यूजली इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो टी इज इक्वल्स टू जीरो इधर ही होता है. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, लेकिन इस पे उन्होंने कहा जब टी जीरो है तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो -36 है. दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं है. यहाँ टी इज इक्वल्स टू जीरो है, और ये जो डिस्टेंस है ओ से वो -36 है, मतलब ये इसके लेफ्ट पे. At time t is equals to 0, the particle is at rest at a point whose displacement is -36. तो रेस्ट पे भी है, इसका मतलब है इधर v 0 है.
इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है इस क्वेश्चन में, -36 है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ इन टर्म्स ऑफ पी। तो जी वी पता है, उससे एक्स निकालना है, और वो निकलता है इंटीग्रेशन से। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा 20t² अपॉन 2 -t4/4 प्लस सी। ओके, अब सी निकालना है। सी निकालने के लिए आई नीड अ टाइम एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। तो वो पता है क्वेश्चन में, टाइम जब 0 है, x -36 है। सो -36 इक्वल्स, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस सी। सो सी आ गया -36। सो x इज इक्वल्स टू 10t² -1/4t4 -36। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन। फिर क्या, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें तो बस सिंपली इस इक्वेशन में टाइम की जगह 4 पुट कर देना। t इज इक्वल्स टू 4, तो फिर x क्या होगा, इसमें 4 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा 60। सो 60 मीटर्स आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द पार्टिकल इज एट O। अच्छा, तो जब ये पार्टिकल O पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। एट O विच इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो 0 होती है। तो अब हमने डिस्प्लेसमेंट को इक्वल्स टू 0 करना है, ये डिस्प्लेसमेंट थी, तो इसको इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 10t² -1/4t4 -36। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई दोनों साइड को 4 से कर दूंगी ताकि वो डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो ये 0 ही होगा। यहाँ 40t² हो जाएगा, यहाँ पे इन t⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे 36 × 4 144 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये आ गया t⁴ -40t प्लस 144 इज t², सॉरी, प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेट t² इक्वल्स u। हमारे पास आ गया u² -40u प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। इसको या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे आपके पास आएगा u इज इक्वल्स टू 36 एंड u इज इक्वल्स टू 4। इसको रिवर्स कर लिया, x -36 x -4, और इसको ओपन कर लिया, x² -36x -4x प्लस 144। I just need a quick second. ओके, ये आई है u की वैल्यू, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। सो u वाज इक्वल, सॉरी, t की वैल्यू, u वाज इक्वल्स टू t² इक्वल्स 36 और t² इक्वल्स 4। तो अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक आंसर 6 आएगा। वैसे ±6 आता है अलजेब्रिकली, लेकिन क्योंकि ये टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो यू ओनली टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। So that is it for this question.
If you have any questions, please ask. पूछिए, आगे चलते हैं। Particle P moves along the x-axis in a positive direction. The velocity of P at time t is 0.03 t square. When t is equals to 5, the displacement of P from the origin is 2.5. Okay, so t is equals to 5 पे डिस्प्लेसमेंट दी हुई और एक v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बताया हुआ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है. ओके, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p. तो हमें दी वेलोसिटी हुई है 0.03 टी स्क्वायर और हमें कहा हुआ है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें. तो डिस्प्लेसमेंट आता है v को इंटीग्रेट करके. ओके, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0.03 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. सो ये आ गया 0.01 टी क्यूब प्लस सी. सी के लिए हमें एक टी की वैल्यू चाहिए और उसी के करस्पॉन्डिंग एक्स चाहिए, वो यहाँ गिवन है. टी 5 है और एक्स 2.5. at t is equals to 5, x is equals to 2.5. So this is equals to 2.5 minus 0.01 times 5 cube. ये आता है 1.25. So C आ गया 1.25. So X is 0.01 T cube plus 1.25. फिर क्या है, find the velocity of P when its displacement is 11.25. Okay जी. So X बताया हुआ है और V पूछा हुआ है. तो पहले आप इस X के लिए टाइम निकालोगे और फिर उस टाइम को वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में डाल देंगे. So x is equals to 0.01 t cube plus 1.25. So 11.25 equals 0.01 t cube plus 1.25. इससे आ जाएगा 11.25 minus 1.25 divided by 0.01. 1000 equals t cube आ रहा है, तो t जो है वो 10 आ रहा है. सब वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं एट t इज इक्वल्स टू 10. जिससे आंसर आता है 3. वेलोसिटी इज 3 meters per second. चलो एक और कर लेते हैं. Okay, this will be the last question we do from this topic.
Particle P starts from rest at the point A and travels in a straight line, coming to rest again after 10 seconds. The velocity time graph for P consists of two straight line segments. Particle Q starts from rest at A at the same instant as P and travels along the same straight line. Show, as P, the velocity of Q is given by this equation. The displacement from A of P and Q are the same when T is equals to 10. Show that the greatest velocity of P during the motion is this. अच्छा, अब आपने इस हाईएस्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इधर. अच्छा, हमें डिस्टेंस नहीं पता फॉर दिस पार्टिकल पे. अगर डिस्टेंस पता होता तो हम कहते हैं कि इसका एरिया जो है इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, और फिर हम उससे इस ट्रायंगल की हाइट निकाल लेते. पर डिस्टेंस तो नहीं गिवन. इंस्टेड आपको ना एक और पार्टिकल क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि देयर इज अ पार्टिकल क्यू, उसकी वेलोसिटी है 30t माइनस 0.3t स्क्वायर. अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जितनी ये डिस्टेंस जितना कवर करता है ना फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, उतना ही पी करता है. तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसको कह देंगे कि वो एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल. सो एक्स जो आएगा वो आएगा इसको इंटीग्रेट करके. और इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट. अच्छा, वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, तो इसकी लिमिट्स भी डाल देते हैं 0 to 10. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 3t² अपॉन 2 माइनस 0.3t³ अपॉन 3, और लिमिट्स हैं 10 0. जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आता है 50. So this area is 50 as well. 50 is equals to half times base, which is 10, times height, which is v. अच्छा जी, अब ये v10 आ गया. So this is 10. Part 2, find the value of t for in the interval 0 to 5, for which the acceleration of q is the same as the acceleration of p. अच्छा जी, हम जरा acceleration of इसकी acceleration हम निकाल लेंगे. Acceleration of p between time 0 to time 5, मतलब कि इधर की acceleration. तो acceleration तो simply rise over run होती है. 2 meters per second square. ओके, और अब आपने क्यू की भी एक्सेलरेशन सेम करनी. एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इज आल्सो द सेम, और उस इंस्टेंट पे टाइम की वैल्यू फाइंड करनी. सो अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए. हमारे पास v का एक्सप्रेशन है. एक एक्सेलरेशन कैसे आती है इसको डेरिवेट करके. तो इसकी डेरिवेशन हो गई, इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं 3 - 0.60. अच्छा, और ये भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन 2 के इक्वल होगी. इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा 1.66666 सेकेंड्स. इसको 1.67 लिखा जा सकता है आफ्टर राउंड. ओके, दैट्स इट.